Yes, good morning all of you. Everybody is there. So ये है drawback of Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model है ना? क्या electrons while revolving loses energy and fall into the nucleus, right? Fall into the nucleus. But ये possible नहीं है. So Rutherford could not explain the stability of atom. Rutherford could not explain the stability of atom. Why electrons are revolving around the nucleus? Why not electrons fall into the nucleus? इसका reason Rutherford नहीं दे पाया. Now this reason was satisfactorily explained by a scientist called as Neil Bohr. Okay, क्या नाम है उसका? Neil Bohr. The famous scientist. What he said, he used the concept of Planck's quantum theory. Rather, all these scientists are working together. Neil Bohr, Max Planck, then Einstein. Okay, so all these Rutherford had just passed the things. So what he said, as long as electrons circular path में move कर रहे हैं, a very important postulate he put forward. Okay, as long as मतलब electrons are always move in a circular path, selected path, always move in a selected path, and certain fixed amount of energy is associated with. By the way, a very interesting thing, Neil Bohr ने मतलब उसने क्या किया? Started with hydrogen atom. So actually Neil Bohr could able to explain the structure of hydrogen atom or the species which have a single electron. Okay, species with only one electron. So that consists of He plus or Li2 plus etc. So ये हाइड्रोजन एटम का एक सॉरी नील मतलब बोर्स थ्योरी का एक कैरेक्टरिस्टिक चीज है. ओके, बोर्स कुड एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम or a species with only one electron. What he said, as long as electron is revolving in a circular orbit, वो जो orbit है वो fixed orbit होता है, and that fixed orbit has fixed energy also, and he has given name for that orbit as a stationary orbit or principal shell, main energy level. He has calculated that energy also. We'll see that later on. Derivation part is not there in our syllabus. मतलब chemistry में नहीं है, but वो physics में है. But मैं बता दूंगा तुम लोग को derivation part. हाँ, वो entrance में काम आने वाली चीज. Is that clear? Okay. So as long as उस electrons उस shell में move कर रहे हैं ना, they never lose its energy. As long as electrons are revolving in a circular path, they never lose its energy. वो electron कभी भी अपना energy lose नहीं करता. इसका मतलब बोर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक शेल में फिक्स कर दिया, है ना? सो मैं ऐसे बोलता हूं ना कि प्रोटॉन्स को घर दिया रुदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन्स को घर दिया बोर ने. प्रोटॉन्स are situated in the nucleus. The nucleus concept was given by Rutherford. While electrons are revolving in a circular path, ये किसने बताया? नील बोर ने बताया. Understood? Anybody having any doubt over here? Hello.
हाँ सर हाँ बोल ना. सो त्या इलेक्ट्रॉनचा पाथ श्रिंक नाही होत ना. हाँ नाही होत पाच रिंग नाही होत. तेच सांगितलं ना की as long as electrons are revolving in a circular path, that stationary orbit, it never lose its energy. आता he has not just said as it is, he said why, because every electron when it is revolving in a circular path, it has certain angular momentum. अच्छा momentum सगळ्यांना माहिती आहे. Everybody know momentum का meaning क्या होता है वो. Momentum is nothing but what? Mass into velocity. Yes or no? Now this is called as a linear momentum. But when any body is moving in a circular path, it is changing its direction. So in that case, we have to consider angular momentum. And angular momentum is equal to mass into velocity into radius of curvature. तो ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसने ये बताया बोर ने कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीग्रल मतलब कोई भी एक नंबर, इंटीजर है 1 2 3 4 लाइक मल्टीपल्स ऑफ h अपॉन 2 पाई. ये उसने कैलकुलेट किया. मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मूव कर रहे हैं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, अच्छा n is equal to 1 2 3, later on it is represented as number of cell. So when I say electron is moving in a first shell, so mvr angular momentum is equal to what? h upon 2 pi. अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है तो एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to what? Twice the h upon 2 pi. इसका मतलब क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में समझो इधर है और इसको अगर इधर जाना है तो इन दैट केस उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, ये ट्वाइस है ना, तो ये क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए. तो वो हाफ और ट्वाइस ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है, वो कभी ऐसे नहीं होगा ऑटोमेटिकली. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है. सो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जा रहा है, थर्ड शेल में मूव कर रहा है, ओके, if the electron is moving in a third shell, in that case उसका angular momentum क्या होना चाहिए, thrice the h upon 2 pi. तो ये जो h upon 2 pi है is a constant value because h is what? Planck's constant. h क्या है? Planck's constant है. Is that clear all of you? Yes. समझ में आया क्यों इलेक्ट्रॉन अपनी जगह नहीं छोड़ता? Why electron is not leaving its position? बट जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है, मतलब इफ इट मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू दी हायर एनर्जी शेल, देखो कैसे. आई जस्ट ड्रॉ हियर अ डायग्राम लाइक दिस वे. स्कूल में ये डायग्राम लोगों ने रुदरफोर्ड के नाम छोड़ दिया था, बट एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है दिस वाज गिवन बाय नील बोर. समझ रहे हो? दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय नील बोर. ठीक है, तो देखो अगर समझो इलेक्ट्रॉन इधर है, समझो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये शेल में है. सो अगर ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया ना. अगर इलेक्ट्रॉन को सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज अडेप्ट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट शेल. या इसको थर्ड शेल में जाना है then it should adapt the angular momentum of third shell. और वो पॉसिबल कैसे होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, मतलब हायर एनर्जी शेल टू द लोअर एनर्जी शेल, देन वो अपने पास का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो दे देगा. एनर्जी इज रिलीज
when the electron jumps from higher energy orbit to the lower energy orbit. And if electron move from lower energy orbit, मतलब वो second से third shell में गया, तो उसको angular momentum बढ़ाना है, increase करना है, that means उसका energy बढ़ना चाहिए, so it absorbs energy. So जब तक तुम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई नहीं करते या इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेते नहीं, तब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा. As long as electron is revolving in the stationary orbit, electron never loses its energy. But when electron jumps from one energy orbit to the another, it either loses energy or it absorbs energy. Yes, clear everybody? चलो बोलो, किसी को डाउट है इसमें? Anybody having any doubt? हाँ मृणाली, कोणी प्रश्न विचारायला? मृणाली तूच ना? हो सर. हाँ, so समझ लगा? हो सर. Good, very good. So चलो, take down the Sir. question. हाँ बोलना. Sir, why does the electron have to jump orbits? No, why means we have seen the atomic energy spectra now, right? So we have seen Yes. there are two types of spectra. One is the absorption and the other one is the emission. So if I am getting a emission spectra, that means electron is moving from higher energy orbit to the lower energy orbit. Try to correlate with the emission spectra. Why we discuss spectrum? तो अगर मुझे कलर एमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, कहां से? हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट. एंड इफ आई एम Okay. गेटिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट. इज दैट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. So why I am getting a particular color, why I am not getting every time a single color? तो उसका रीजन यहाँ पे छुपा हुआ है. ओके, और हम लोग कुछ डेरिवेशंस और एक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें और चीजें और क्लियर हो जाएंगी और कंफ्यूजन और बढ़ेगा, ये भी बता रहा हूं मैं तुम लोग. इज दैट ओके? चलो फिर राइट डाउन दी, क्या ये देखो, दिख रहा है सबको? So I am just reading first postulates. Try to understand this. Write the postulates of Bohr's atomic theory. In 1913, Niels Bohr proposed a new theory of atomic structure. Okay, to overcome the drawbacks in previous theory, that is Rutherford's atomic theory. The main postulates of Bohr's theory are as follows. An atom consists of positively charged central part called as nucleus, an extranuclear part in which electrons are revolving in a circular orbit. The electrons are revolving in a certain selected fixed circular orbit called as stationary orbits और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट. नॉन रेडिएटिंग का मतलब जो रुदरफोर्ड का प्रॉब्लम था ना, इट कैन लूज इट्स एनर्जी, तो ऐसा नहीं होता. स्टेशनरी मतलब वो उनका घर हो गया, जब तक वो उनके घर में है तब तक वो एनर्जी नहीं देंगे. The energy of an electron remains always constant so long as it is revolving in the same stationary orbit, because it does not radiate or lose energy. Okay, क्यों नहीं करता एनर्जी लूज? Because it has fixed angular momentum. A certain definite amount of energy is associated with each electron in a particular stationary orbit. Thus, each stationary orbit corresponds to fixed energy level. And these energy levels were numbered as 1, 2, 3, 4,
which is later on ब्रिटिश लोगों ने उसका नंबर दिया K, L, M, N respectively. मतलब K shell first shell, L shell second shell, M shell third shell, and so on. Energy goes on increasing as the distance of energy levels increases from the nucleus. Therefore, the energy of energy levels is in the order, मतलब जैसे जैसे distance बढ़ेगा energy of levels, energy shell क्या होगा, बढ़ते जाए. So first shell का energy सबसे कम रहेगा, than that of the second shell, than that of the third shell, and so on. An electron jumps from or transit from lower energy level to the higher energy level by absorbing energy in a fixed amount, that is quanta of energy. Energy is radiated or emitted in a quanta when electron jumps from higher energy level to the lower energy level. The amount of energy emitted is quantized, okay, and will be equal to the difference between the energy. मतलब कितना एनर्जी होगा लिबरेट और एमिटेड. देखो समझो ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकेंड शेल, इसका एनर्जी है E1 और इसका एनर्जी है E2 ना. इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन शुड अक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी ना. कितना एनर्जी वो एक्वायर करेगा, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ दीस टू. सो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. और ये जो एनर्जी होता है दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड एक्चुअली. Okay, the stationary orbits for the revolution of electrons are only those in which the angular momentum of the electron in the orbit is equal to the integral multiples of h upon 2 pi. Okay, h upon 2 pi. ठीक है? Yes. Where m is the mass of an electron, v is the velocity of the electron, r is the radius, n is a 1, 2, 3 principal quantum number. पढ़ेंगे आगे जाके. h is Planck's constant, that is 6.62 into 10 raised to minus 34 joule second. Pi 3.1. So ये है actually Bohr's theory. Any doubt, any point which you are not understood, ये लिख लो. Just put the heading Bohr's atomic theory. Bohr's atomic theory, postulates of Bohr's atomic theory. First of all, write down these 4 points. So if you have any doubt, hang on there. Okay, we are going to discuss, we are going to, मतलब धीरे धीरे तुम लोग के doubts clear होंगे और more and more doubts will create. Don't worry about it.
sir, copying the fourth one. चलो फोर्थ पॉइंट।
Yes, done everybody? सबका हो गया? अभी तक नहीं हुआ? Yes, बाकी लोगों का हो गया लिख के? Everybody is done? Yes, sir. Yes, sir. Good. So what are the important features of Bohr's atomic model? So the first thing is that the stability of atom. According to the Bohr's theory, देखो ना, electrons एक particular orbit में मूव कर रहे हैं और जब तक वो उसमें मूव कर रहे हैं वो अपना एनर्जी क्या लूज नहीं करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन is not going to fall into the nucleus, which means the atom is now stable, right? ये one हो गया। Second thing, he apply the concept of energy. ना याद रखना एनर्जी ये ऐसा कंसेप्ट है, टर्म है, where हाँ वत्सल होल्ड ऑन ना, मैं उसके पे बात करूंगा। whatever you are saying that is correct, absolutely correct, but यहाँ पे वो फॉर्मूला कैसे आया ये पहले हम लोग देखेंगे। what I said कि Neil Bohr has given explanation for hydrogen and hydrogen like atom. So now we are talking about one electron. Now if वहां पे shells अलग रहेंगे तो फिर कैसे रहेगा, we are going to discuss, मैं बताऊंगा
ब्रदर अपने सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है, बट आई विल शो यू द डेरिवेशन आल्सो. डेरिवेशन इन केमिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए. ओके, बोर्ड एग्जाम में ओनली रिजल्ट इज गिवन टू यू. ठीक है. सो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, व्हाट आई सेड फर्स्ट पॉइंट, कि अकॉर्डिंग टू द बोस थ्योरी an electron neither gains or lose energy while revolving in a particular stationary orbit, and therefore atom will remain stable. Energy of electron, उस पर मैं आता हूँ. First of all, let us calculate radius of Bohr's orbit. Okay, radius of Bohr's orbit कैसे calculate करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं. Calculation of, okay, so ये है results of Bohr's theory. उसमें फर्स्ट है, अच्छा अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क. ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ पार्ट है. मतलब अभी भी कुछ लोग 10th स्टैंडर्ड पे ही सब चीजें विजुअलाइज कर रहे हैं. ओके, एंड कैसा है कि मैं उसके लिए तुम लोग को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज दैट वाज यू डिड फॉर मेनी टाइम्स, और अभी तक तुम लोग के दिमाग में वो पिक्चर अच्छे से फिक्स्ड हो गया. तो अभी मुझे उस पिक्चर को मिटाना है. सो सी, ये है नया पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में. व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट, बिकॉज नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को वहां पे लोकेट कर रहा हूं तो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है ना. सो वी आर गिविंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. The first one is radius of Bohr's atom. When I say Bohr's atom, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम. ओके, radius of Bohr's orbit, Bohr's orbit. ठीक है, चलो. I think you must have studied Coulomb's law. According to the physics में पढ़ोगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे. According to the Coulomb's law, force of attraction between oppositely charged species is directly proportional to the charges and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, ये है Coulomb's law. What I said, force of, यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ, नोट. Coulomb's law. Coulomb name of the scientist, huh? Force of attraction is directly proportional to Q1, Q2. Q1, Q2 are the charges divided by R square, distance between these two charges. Therefore, F is equal to, अभी proportionality यहाँ पे जो constant होता है उसको बोलते हैं 4 pi epsilon 0 Q1, Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो ये क्या है सर, ये सॉरी ये वाला फिजिक्स वाला पार्ट है, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता. इसको बोलते हैं एप्सिलन 0 और E0. एप्सिलन EPS, ये ग्रीक लेटर है, एप्सिलन 0 और E0, Q1, Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, इसका एक वैल्यू फिक्स होता है. In chemistry, I am considering this as a constant value K, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होता है. Okay, so in case of atom, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है ना. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, K. चार्ज में मान लेता हूं E, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, E इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज, दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, डिवाइडेड बाय व्हाट, R स्क्वायर. देयरफॉर ये इक्वेशन क्या होगा, KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. समझ में आई ये?
ये इक्वेशन कैसे आया, समझ में आया? अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या लिखा, 1। बट अगर समझो मैंने फॉर अदर एटम, अभी जैसे मैंने लिथियम बोला, लिथियम Li2+, और समझो मैंने बोला He+1, तो He+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 2। तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय E, बट इलेक्ट्रॉन एक ही है ना, बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो मल्टीप्लाइड बाय E। तो इसलिए इन जनरल वत्सल, force of attraction is equal to K multiplied by ZE। ये ZE कहां से आया, न्यूक्लियस से, टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, multiplied by E, charge on electron, divided by R square। Therefore ये इक्वेशन हो जाएगा KZE² अपॉन R square। तो अगर मैं हाइड्रोजन बोलूं तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, बोलो जरा। 0 एक, नहीं, 1 होता है। 1 तो 1 जब मैं 1 बोलूंगा तो ये इक्वेशन देखो मिल गया, Fe² अपॉन R square। अगर मैं लिथियम बोलूं तो Z कितना होगा, 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय E²। समझ में आया सबको? यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में, ये इक्वेशन कैसा है समझ में आया? इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। दिस इज ट्रीटेड एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो भी आगे देखो। समथिंग इज हैपनिंग, बोलना। What is ZE? Z is the number of protons, E is the charge on the proton। Okay. Z, when I say atomic number, मतलब लिथियम, लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, हेलो, 3। अच्छा, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो 3 प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻90, बराबर है? Yes, sir. हाँ, अच्छा, दूसरी बात, सेकेंड थिंग, अगर मैं बोलूं मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कर रहा हूं ना, आई एम कंसिडरिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर दिस थिंग, Bohr's theory was very well explained for single electron system. It is okay, so हम लोग क्या कर रहे थे, Coulomb's law मैंने बताया था, right? According to the Coulomb's law, force of attraction is equal to what, क्या बताया था मैंने, K multiplied by ZE। ये ZE क्या हो गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। E क्या हो गया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वत्सल समझ में आया? नील बोर का ये ड्रॉबैक था, वी कैन से नील बोर ने जो कंसेप्ट दिया, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम। Therefore, force of attraction is equal to KZE² upon R square। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट वन। नाउ देयर इज वन मोर फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने बताया था तुम लोगों को कि whenever a body, so here I am writing centrifugal force, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करता हूं ना, तो उसमें ऐसे होता है कि whenever a body is moving in a circular path, okay, it has a tendency to move away from the nucleus, okay,
सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर तुम लोग के घर में सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन पे ना जो उसके आर्म्स होते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ, तुम लोग करो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। जनरली क्लास में जब होता है ना तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, प्लीज वट एवर एक्सपेरिमेंट्स यू विल बी डूइंग, take your parents as well as your family members in confidence, okay? नहीं तो होगा क्या, उनके साथ प्रैंक हो जाएगा और तुम लोग फिर मजे करोगे। सो हम लोग को प्रैंक नहीं करना है किसी के ऊपर, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये एक इशू है। जनरली ऐसे ही फैन होता है, सिर्फ ये थोड़ा दंडी बड़ा हो गया, बट ऐसा बड़ा नहीं होता वो दंडी। लेट अस अज्यूम दिस वे, पहले फैन बंद कर दो और बंद करने के बाद उसके ऊपर ये वाले साइड में ना, ऊपर वाले साइड में एक पेपर बॉल रख दो, पेपर बॉल, ओके? और फिर फैन चालू करो। जैसे ही फैन चालू होगा ना, ये देखना कैसे गिर रहा है, ये इस तरह गिर रहा है या इस तरह गिर रहा है, ये तुम लोग आइडेंटिफाई करो। ये ना ऐसे नहीं गिरता, इट ऑलवेज फॉल लाइक दिस वे। So this is called as a centrifugal force. So any body which is moving in a circular path, okay, is moving away from the center. तो अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है? बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसलिए वो अवे, तो ये बैलेंस फोर्स हो जाता है। और इसका इक्वेशन है mv² अपॉन r। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, force of attraction is equal to centrifugal force। तो मैं क्या लिखूंगा, kZe² अपॉन r² is equal to what, mv² अपॉन r। मुझे क्या हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डिटरमाइन, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, रेडियस एक साइड में लेता हूँ और बाकी सब चीजें दूसरे साइड में लेता हूँ, राइट? या और एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूं, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थियरी, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थियरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसको मैं पहले कर देता हूं ना, वैसे r² इधर आ गया तो r कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, kZe² अपॉन mv² is equal to what, r, okay? So according to the Bose theory, क्या है according to the Bose theory, angular momentum of the electron, angular momentum, angular momentum, that is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi. Therefore v is equal to what, nh upon 2 pi m into r। तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं और ये इक्वेशन 4 हो गया। सो फ्रॉम 1 and 4, from equation 1 and 4,
from, sorry, not 1 and 4, 3 and 4. क्या हो जाएगा इक्वेशन बोलो जरा? R is equal to KZE square upon M multiplied by N square H square upon 4 pi square M square R square. है ना? Is that okay? तो अभी ये देखो, ये M, this M get cancelled. So R is equal to, tell me, R is equal to K Z square multiplied by 4 pi square R square upon N square H square. मैं कुछ नहीं किया, I just did the mathematics, that's it. हाँ, यहाँ पे केमिस्ट्री है ही नहीं. Followed everybody? हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है एक मास भी आएगा. Multiplied by M, mass of the electron. K Z E 4 pi square R square M upon N square H square. Therefore, this R और ये R cancel हो गए. So N square H square upon K Z square 4 pi square M is equal to what? R. This is the equation for radius of stationary orbit, a radius of orbit in which the electron is revolving. Sir, ये थोड़े फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं. Very good, I know that. तो उसके ऊपर हम लोग शॉर्टकट निकालेंगे. पहले ये लिखो, फिर मैं समझाता हूँ वो शॉर्टकट क्या रहेगा. ये स्टेप समझ में आए? ओके, जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं ये वो लिख लो. जो लोग एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे वो डायरेक्ट ब्रैकेट, वो मैं तुम लोग के ऊपर ऑप्शन छोड़ता. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन. इफ यू डोंट वांट टू राइट, नो प्रॉब्लम, बट ये लास्ट वाला रिजल्ट लिख ले. जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे वो सब कुछ लिख लो. जो लोग एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे वो सिर्फ लास्ट वाला ब्रैकेट वाला लिखो. इट्स ऑप्शनल टू देम वेदर दे नीड टू राइट इट और नॉट. ये तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ. अच्छा, have you followed the steps, everybody? वेदांत, तिन्ही पण वेदांत. Yes, sir. वेदांत काय जात होता ना तू? पाटील. शेल, ठीक है. N stand for number of shell. H stand for क्या है? बोलो. Planck's Planck's constant. constant. What is the value of Planck's constant? 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. ठीक है. उसके बाद the value of K. What is the value of K? K का वैल्यू होता है 1 into 10 raised to minus 9.
10⁹, सॉरी 9 into 10⁻11 ऐसा कुछ तो वैल्यू होता है वो, अभी मुझे भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बता देता हूं मैं। Z इज इक्वल टू व्हाट इज Z? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। So may I write atomic number? Z stand for what? Atomic number. E is equal to what? Charge, जिसका वैल्यू कितना है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। पाई का वैल्यू पता है, और m का मतलब क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। ओके, सो इसमें दो चीजें वेरिएबल है, कौन सी? n और z, बराबर कि नहीं? Only two values are variable. What are those values? N and Z. So if you substitute these values, I will have radius, एक constant value मिलेगा। क्या रहेगा? एक constant value रहेगा, and that value is 0.529 into 10⁻⁻10 n square upon Z. Is that clear? Radius of any shell, मैं Rn लिखता हूं यहाँ पे, क्या होगा? 0.529 into 10⁻⁻10 n square upon Z मीटर, तो 0.529 n square upon Z एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं? पता ना? यस सर। करेक्ट। इसको पिकोमीटर में वगैरह तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये याद रखना बहुत सिंपल है कि नहीं? राइट, दिस इक्वेशन वी कैन इजीली रिमेंबर। व्हाई? बिकॉज दिस इक्वेशन इज फॉर रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is revolving, radius of a shell in which the electron is revolving. Am I right? विधान से देखो, for hydrogen atom, ground state का मतलब होता है हाइड्रोजन में होता है, मतलब जिसमें लोएस्ट एनर्जी होगा, लोएस्ट एनर्जी। सो हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल n is equal to 1 होगा। तो what is the radius of ground state और a first shell? क्या होगा? बोलो। RH लिखते हैं हम लोग, RH is equal to 0.529, n कितना है? 1 स्क्वायर। हाइड्रोजन में Z कितना होता है? 1, so that is equal to what? 0.529 angstrom. Is that clear? ये है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, फर्स्ट शेल, रेडियस ऑफ a shell in which the electron is revolving. ये फर्स्ट शेल का रेडियस हो गया। वैसे हम लोग सेकेंड शेल के बारे में बात करते हैं। थर्ड शेल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी हम लोग को बचपन में ये पढ़ाया गया था, हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, बट बोर्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिट फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकेंड शेल टू थर्ड शेल टू फोर्थ शेल, कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? यस, प्लीज राइट डाउन दिस। तो ये फॉर्मूला सबको याद रखना है रेडियस का। कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो वत्सल, अगर मैं बात करूं फॉर He plus, what is the radius of first shell? बता सकते हो कितना होगा वो? रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल कितना होगा? 0.529। n1 है, z कितना है? डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा ये? 0.2645 एंगस्ट्रॉम।
Is that clear? Yes, sir. Write down this. वैसे हम लोग Li2+ के लिए निकाल सकते हैं एंड गो ऑन, ये सब लोग करते जा सकते हैं। तो उससे में एक बात क्लियर हो गया कि रेडियस ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n and inversely proportional to nuclear charge. Okay. अरे 12 नहीं हो, 1 स्क्वायर है, n1 है ना, n या फॉर्म्युला कमुदी या फॉर्म्युला मध्ये आपण टाकलं फर्स्ट शेल आहे ना, हायड्रोजनचा फर्स्ट शेल आहे, फर्स्ट शेल मध्ये n इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर आहे ते डिवायडेड बाय 1 आहे. K का वैल्यू है 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. K का वैल्यू है 10⁹ है वहां पे, 10⁻11 सेंटीमीटर की लेता वो 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. Unit Newton meter square per coulomb square. This is the unit for K. चलो क्विकली हम लोग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. अगेन यहाँ पे भी सेम थिंग हो गया ना, लिख के हो गया ना सबका? Yes, sir. Yes, sir. Just put the heading energy of an electron. Energy of an electron. अभी energy of an electron consists of total energy, इसको मैं E लिखता हूँ, E is equal to kinetic energy plus potential energy. ठीक है? Now just look at here. Potential energy is equal to, देखो potential energy का फॉर्मूला क्या है देखना. Potential energy is, ये सब फिजिक्स वाले कंसेप्ट है. ओके, सो ये कहां से आया सर, किधर से आया? डोंट टेक टेंशन. K into Q1 into Q2 divided by R. This is called the potential energy in general. Note. Right? तो यहाँ पे बोला ना, R square ना? नहीं, potential energy, that is nothing but your force of attraction. Okay sir. ते आपण जे बघितलं ते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होतं, इथे पोटेन्शियल एनर्जी आहे ना. सी व्हेरी सिंपल. व्हॉट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बरोबर? and Yes, that sir. work is converted into energy na, so I can call it as what? Potential energy. Now what is F stand for? K multiplied by Q1 Q2
upon r square multiplied by what? R. Therefore potential energy is equal to this expression. समजलं कुठून आलं ते? Yes, sir. Yes, anybody? Always please keep this thing in mind कि 90% time you should able, as a science student, you should look for why this is getting, why are you getting this, ये ढूंढो. अदरवाइज ना ये सब चीजें एकदम क्या बोलते हैं उसको, ड्राई हो जाएंगी. ये कहां से आया, ये इक्वेशन कहां से आया? राइट, मैंने बोला कि नहीं ये तुम लोग को ऐसे याद रखना है, बट स्टिल यू फाइंड इट ऑन इंटरनेट. समटाइम यू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स बिकॉज कैसे है कि यू आर स्टिल इन 11th स्टैंडर्ड. तो जब तुम लोग गूगल से या कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, यू विल गेट इंफॉर्मेशन. उसमें उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें तुम लोग को अननोन रहेंगी. तो उसमें कितना डीप में जाना है ये मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूं. बट जरूरी नहीं कि सब मुझे आना चाहिए, ये याद रखना. क्या आना चाहिए जो अपने टेक्स्ट बुक में वो आना ही चाहिए. बट इसके अलावा ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, इसको बोलते हैं शेरलॉक होम्स थ्योरी. ओके, तो अगर तुम लोग ऐसे घुसते गए एंड इफ यू गो, तो वो तुम लोग कितना अंदर तक घुसना है ये मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूं. कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर अंदर जाएंगे, बट अगर वो करते करते अपना जो मेन एस्पेक्ट है अगर वो भूल गए, मेन एम है अगर वो भूल गए, तो फिर उसका मतलब नहीं है. देन यू हैव टू गो फॉर रिसर्च. ओके, सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बोलो, हियर K multiplied by E square, नहीं Z E square, Z E square upon R, right? ना वही Q1 क्या लेंगे हम लोग Z E और Q2 क्या लेंगे हम लोग E. अच्छा, what do you mean by kinetic energy? Half mv square, है कि नहीं? बराबर है, half mv square, right? Now what do you mean by mv square? mv square क्या है? हम लोगों ने किया था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस किया हम लोगों ने, राइट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद है? यहाँ पे किधर तो किया था हम लोगों ने. हाँ ये देखो, है ना, k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. तो r स्क्वायर तो क्या हो गया, k z स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी नाउ? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k z e स्क्वायर अपॉन r, राइट. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर दैट पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है. क्यों नेगेटिव होता है? व्हाई? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना. ओके, सो इन दैट केस हम लोग ये चार्जेस प्लस माइनस लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना. सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बोलो k z स्क्वायर अपॉन r माइनस k z स्क्वायर अपॉन r. देयरफॉर E is equal to what? Minus k z स्क्वायर अपॉन 2r. यस और नो? बराबर किया मैंने, माइनस साइन आया. नाउ देयर इज, वी ऑलरेडी डिराइव वन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस. ये किया ना, रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया. किधर गया वो फॉर्मूला? ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिराइव किया. अगर मैंने वो रेडियस का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसमें इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा? तो E इज इक्वल टू माइनस k z स्क्वायर अपॉन 2. चलो जरा बोलो फटाफट, रेडियस का इक्वेशन क्या है? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, आगे m e स्क्वायर z. यही है ना इक्वेशन. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, माइनस
अच्छा इसमें के भी था ना, के किधर गया? AOC. के भी है ना यहाँ पे, Yes, sir. किधर गया वो? यस, के जेड स्क्वायर था, बराबर। 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, या करेक्ट। तो अभी अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा मुझे? ये हो गया के स्क्वायर, है ना, ई रेस टू 4 जेड स्क्वायर, और क्या है ऊपर? 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के हो गया, बराबर। के स्क्वायर ई रेस टू 4 जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एंड एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। अभी इसमें जो चीजें कांस्टेंट है उसको मैं एक साइड में लेता हूं, तो k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर। वेरिएबल क्या है? z स्क्वायर एंड n स्क्वायर। So this is nothing but your constant value, है कि नहीं? एक कांस्टेंट वैल्यू बन गया वो। अगर उसको मैंने सॉल्व किया, इफ आई सॉल्व दैट, देन व्हाट आई एम गेटिंग, देखो क्या मिलेगा मुझे, देखो मुझे आएगा E इज इक्वल टू माइनस 2.17 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू माइनस 18। ऑल SI यूनिट्स अगर मैंने कंसिडर किए तो इसका यूनिट होगा जूल्स। इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स। माइनस, सॉरी यहाँ पे 18 आना चाहिए, माइनस 2.17 इंटू 10 रेस टू माइनस 18 जूल्स, माइनस 18। इज दैट क्लियर? यस, समझ में आई है? अच्छा, अब बोलना बोलना। Sir, why did we subtract potential energy from kinetic energy? No, not subtract, बस the value of potential energy is coming negative. Oh, okay. It is not subtracted. So when you put it over here, it becomes already, मतलब ऐसा हो जाएगा, माइनस साइन आ गया ना वो। Okay, sir. मैंने बताया ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो माइनस साइन आता है। देयर वी कंसीडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। Okay, sir. ओके, हाँ, यस, somebody saying also, हेलो, सेम डाउट सर। ओके, सो फॉलोड एवरीबॉडी। ये कैसे आया वो? अच्छा, तो इसमें और एक चीज मैं ऐड करता हूँ, ध्यान से देखो। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.9 into 10 raised to minus 19 joules। तो अगर ये जूल को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। सो अगर तुम लोगों ने उसको सॉल्व किया तो ये होगा E इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट चेंज हो गया बस, और कुछ नहीं। Now these two values you have to remember। ये वैल्यू रिमेंबर, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगेन द सेम थिंग, दोज हु वांट, मतलब जो लोग एंट्रेंस में वो सब लोग डेरिवेशन लिखेंगे, जो लोग 12th स्टैंडर्ड मतलब बोर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ रिजल्ट लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट, दैट्स इट। ओके, राइट डाउन। एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? हाँ कौमुदी, समझ लगा? कौमुदी, हो सर। थोड़ा डिफिकल्ट होता है आजचा पार्ट। ओके, यस, एनीबॉडी हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? मृण्मयी, नील, नील, चलो लिख लो जल्दी।
Sir, हाँ बोल. sir, in the second last step, how did we get e square from e raised to the power 4? मला नाही समजलं म्हणजे. Sir, in the third last step, we have e raised to the power 4. This one. In नहीं, the नहीं, above one. e raised to 4 है. Printing mistake. Okay, sir. Done everybody? Yes, sir. Yes, sir. Good, good. So if I ask you to calculate, a few of the things I want to add first, then we'll go for the calculation part. Just write down one statement. This formula is applicable. मतलब ये जो energy वाला है ना वो. This formula is Vatsal. Listen carefully, yeah. This formula is applicable for hydrogen atom.
This formula is applicable for hydrogen atom and hydrogen-like species. This formula is applicable for hydrogen atom and hydrogen-like species, that is single electron species. That is single electron species. ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट लिखो. What do you mean by N? Small n stand for what? Hello? What do you mean by small n? Number. Number of shells. Shells. Correct. Number of shells. So लिखो. Since n can have only integral values, बराबर ना? वो fractional कभी होगा क्या value? कभी नहीं होगा ना? No. हाँ. So since n can have only integral values, comma, it follows that the total energy of the electron is quantized. It follows that the total energy of the electron is quantized. Third point. The negative sign indicates that the electron is under attraction. The negative sign indicates that electron is under attraction towards the nucleus. So मुझे पता as the number of shells बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, फर्स्ट शेल का या सेकेंड शेल का? फर्स्ट शेल का एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा. And as we move away from the nucleus, energy of the electron goes on decreasing. Is that clear? Yes. So that's it for today. आज हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. Next lecture में we'll continue again. Okay. Everybody understood? Please go through the derivations again. Those who are giving 12th standard, मतलब HSC, just go through the textbook. What they want to say, just go through it. और NCERT का textbook अगर है तो NCERT का textbook भी पढ़ना. NCERT में it is given somewhat थोड़ा difficult तरीके से दिया है. Okay. So read that part. Thank you very much. Those who have a doubt, they can stay with me. Those who do not have, they can leave. Bye bye.